Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 8th. We will discuss MS Access shortcut keys today. In the previous videos, we have already discussed a lot of topics on MS Access. Now we will discuss that there are some shortcut keys which we can use to work in MS Access that helps the user to work more faster and more reliable. First of all, I would like to tell you that we have already discussed also that MS Access is one of the member of the Microsoft suite that is Office application. यानी जो MS Access है ये MS Office जो है एप्लीकेशन उसका ही एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है. MS Access जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि अपने फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है. In MS Access, we can create databases with the help of creating tables, multiple tables, forms, queries, and then generate reports. Okay, so Microsoft Access is just like Microsoft Excel. That means it also has the rows and columns that you see in MS Excel also, and we can manage the data as well as in MS Excel also. But the thing is that in MS Excel, that is flat file system, in that the tables are not interconnected with each other. But here in MS Access we can create many tables and they connect to a single database. So this is very helpful for creating database and creating data with lots of information. The most interesting feature of MS Access is that it manages related data more efficiently than Microsoft Excel. Using this application daily, we can store and manage data. It is very easy that if we use Microsoft Access shortcut keys, okay, because if we use shortcut keys, that will save our time also, and as well as it can increase our performance task quickly. So that's why we must learn these shortcut keys. Now, to manage database, we must learn some shortcut keys. Like if you want to open or create a new database in MS Access, then you have to press Control E. Control N. If you are creating or opening a new database, then you have to use Control N for creating new database. You know that Control N in all the applications, mostly for creating new, you have to use Control N to open or to create a new database. If you want to open an existing database, then you have to use Control O shortcut key. If you want to exit MS Access, अगर आपको MS Access को exit करना है, then you have to use Alt F4. क्या शॉर्टकट की है उसकी? Alt F4. अगर आपको प्रिंट करना है कोई भी करंट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको या कोई भी पर्टिकुलर टेबल, so for that you need to use Control P. If you want to save a database project, then you have to use Control S. If you want to open Save As dialog box, Save As का जो dialog box होता है जिसमें कि आप अपनी सेम फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हो, so for that you need to press F12 key. Then there are some find and replace shortcut keys. Like if you want to find and replace dialog box, if you want that dialog box so that you can find any particular word from your database, so that you must use Control F shortcut key. If you want to replace any word from another word, then you have to press Control H. If you want to find next, that means the particular word that you have written many times in your database, and if you want to be
select or find the next that particular word wherever it is written. So for that you must use shift plus F4. गो टू द नेविगेशन पेन सर्च बॉक्स. अगर आपको नेविगेशन पेन वाला सर्च बॉक्स खोलना है, ठीक है, जहाँ से आप नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो, वन टेबल टू अनदर टेबल. सो फॉर दैट यू कैन प्रेस कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ. दिस इज द की कॉम्बिनेशन, कंट्रोल ऑल्ट एफ फॉर ओपनिंग द नेविगेशन पेन सर्च बॉक्स. अगर कंट्रोलिंग की बात करें, अगर आपको फॉर्म को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं कंट्रोल एक्स यूज़ करेंगे कट करने के लिए टेक्स्ट को, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी, मूव करना है सेलेक्टेड कंट्रोल एफ. ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को, किसी चीज़ को भी अगर उसको सेलेक्ट करके उसको अप करना है तो उसके लिए अप एरो की. इसी तरह से अगर आपको डाउन की तरफ लेके जाना है कोई भी सेलेक्टेड जो है कंट्रोल को, तो आप उसके लिए डाउन एरो की. अगर आपको लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है तो लेफ़्ट एरो की, राइट की तरफ लेके जाना है तो राइट एरो की का यूज़ करेंगे. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड कंट्रोल, अगर कोई भी सेलेक्टेड एरिया है और उसकी आपको हाइट इंक्रीज़ करनी है, लाइक कोई बॉक्स है इस तरीके से, तो आपको उसके लिए शिफ्ट एंड डाउन एरो का यूज़ करना है. डिक्रीज़ करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो का. अगर उसकी विथ को अगर इंक्रीज़ करना है तो आप उसके लिए शिफ्ट एंड राइट एरो, और अगर डिक्रीज़ करना है तो शिफ्ट एंड लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे. इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट मेन्यूज़ को ओपन करना है तो जैसे अगर आपको शो करना है शॉर्टकट मेन्यू, कौन कौन से शॉर्टकट मेन्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट F10 का इस्तेमाल करना है. अगर आपको एक्सेस की कीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना है. अगर आप शो करना चाहते हो प्रोग्राम आइकन मेन्यू तो उसके लिए ऑल्ट और स्पेस आपको प्रेस करना है. अगर आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट कमांड इन मेन्यू तो देन आपको डाउन एरो. प्रीवियस कमांड मेन्यू में तो देन ये तो आपको पता ही है, आप उसको शिफ्ट करने के लिए अगर आपको जो एक कोई भी शॉर्टकट मेन्यू है उसमें अगर अप एंड डाउन कोई भी इस तरीके से कोई ऑप्शन चूज़ करना है, सो फॉर दैट यू नीड टू यूज़ एरो कीज़. इसी तरह से अगर कोई लेफ़्ट में कोई मेन्यू है जिसका सब मेन्यू है तो उसको सेलेक्ट करना है तो लेफ़्ट एंड राइट एरोज़ का यूज़ करेंगे. अगर आपको फर्स्ट कमांड मेन्यू की सेलेक्ट करनी है तो होम का टैब का होम बटन का यूज़ करेंगे, होम की का यूज़ करेंगे. और अगर लास्ट कमांड को यूज़ करना है सो उसके लिए आप एंड का यूज़ करोगे. अब अगर आपको डायलॉग बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनके शॉर्टकट्स देखने हैं तो अगर स्विच करना है आपको न्यू टैब इन द डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए हैं अगर उसमें स्विच करना है वन टू अनदर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस टैब करना है आपको. इसी तरह से प्रीवियस टैब जो है अगर आपको स्विच करना है प्रीवियस टैब में डायलॉग बॉक्स के तो कंट्रोल शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है तो सिंपली टैब पे क्लिक करेंगे. अगर प्रीवियस ऑप्शन पे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब का यूज़ करेंगे. अगर आपको कोई करंट बटन जो है उसको सेलेक्ट करना है तो स्पेस का यूज़ करेंगे. द सेम वे अगर आपको कोई ओपन करना है सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की. अगर क्लोज करना है सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को तो एस्केप की का यूज़ करना है. क्लोज करना है डायलॉग बॉक्स को तो भी एस्केप की का यूज़ करना है. अगर मूव करना है बिगिनिंग ऑफ एन एंट्री, जहाँ पे आपने सबसे पहले एंट्री करी हो वहाँ पर, तो होम की प्रेस करेंगे. अगर लास्ट एंट्री पे मूव करना है तो एंड का यूज़ करेंगे. अगर आपको वन वर्ड लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट, और राइट की तरफ करना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की. इसी तरह से अगर आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम कर्सर टू द एंड, कर्सर को लास्ट की तरफ, तो आप शिफ्ट प्लस होम प्रेस करेंगे. अगर कर्सर को सबसे पहले सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाले जगह पे आ जाए, पहली जगह पे जहाँ पे अपने डेटा लिखा हुआ हो, सो फॉर दैट यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस एंड. एंड एक्सटेंड करना हो अगर सिलेक्शन आपको वन कैरेक्टर टू द लेफ़्ट तो अगेन आपको शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो. एंड अगर राइट की तरफ कैरेक्टर को सिलेक्शन करना है, एक्सटेंड करना है उसको, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो. अगर आपको मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द विजार्ड जो चलता है जिसमें कि आप फॉर्म टेबल्स को विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर उसमें आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो फॉर दैट यू कैन प्रेस ऑल्ट एन.
अगर प्रीवियस विजार्ड पे जाना है तो कंट्रोल तो ऑल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे, कंप्लीट करना है विजार्ड को तो ऑल्ट प्लस एफ फॉर फिनिशिंग इट। इसी तरह से अगर आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट फील्ड को तो आप टैब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्रीवियस फील्ड को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ टैब। अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है फॉर दैट यू विल प्रेस कंट्रोल ए। टर्न करना है अगर आपको एक्सटेंड मोड में, ठीक है, तो F8 को प्रेस करेंगे। इसी तरह से प्रीवियस एक्सटेंशन जो अंडू करना है, जो भी आपका पहले का वर्क हो या एक्सटेंशंस जो आपने दिए हुए हैं, तो उसके लिए शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आपको अगर कोई सेलेक्ट करना है करंट कॉलम तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, और टर्न करना है अगर आपको ऑन मूव मोड तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करना होगा। इसी तरह से अगर आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सेमी कॉलन है यहाँ पर लगा हुआ। इसी तरह से अगर करंट डेट करनी है तो कंट्रोल के साथ कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड जो भी है अगर वो आप चाहते हैं इंसर्ट करना तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट स्पेस का यूज़ करेंगे। अगर आप वैल्यू कोई भी जो है सेम फील्ड कोई भी इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू फ्रॉम द सेम फील्ड तो आप कंट्रोल के साथ इस मार्क का यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन का, जो सिंगल जो अप कॉमा होता है जो। इसके अलावा अगर न्यू रिकॉर्ड आपको करना है ऐड तो उसके लिए कंट्रोल के साथ जो है ये जो आपका ब्रैकेट्स होते हैं इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे आप। इन अ डेटा शीट इफ़ यू वांट टू डिलीट द करंट रिकॉर्ड तो कंट्रोल के साथ माइनस डैश बटन का यूज़ करेंगे। अगर सेव चेंजेस करने टू द करंट रिकॉर्ड तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, और अगर आपको एक न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करेंगे। So I suppose there are lots of shortcut keys that we have discussed and you can learn them, you can use them while you are working on MS Access. That will be very helpful for you. That's all for you in this video. You can use these keys in MS Access while creating tables, forms. Okay, that's all. Thank you.